himself to travel and network with his mentors while traveling to some of the most spectacular destinations from Dubai to Singapore, expanding his holistic experience at the Himalayas, keeping up with adventures like skydiving, and spending the rest of 100 days with the family, love, and close relationships for your entire life. Crafting and balancing his own extraordinary life to elevating individuals in all area of life. This is how he helps people to 10x multi-millionaire holistic life. It's time to elevate your life, elevate your world. Good evening, good evening, everybody. Come on the camera and show me your beautiful faces. Good evening, everybody. Come on the camera and show me your beautiful faces. How you all are doing? Let me know in the chat box. And also let me know in the chat box from which city you belong, in profession, what guys exactly you are doing, so I can understand from which kind of crowd I am gonna interact for next 90 minutes on the session 1.0 about high ticketing industry. So let me know in the chat box, then I'll start my session. Shailesh is superb. Okay, Shailesh, Uday, Supriya, Deepak. I'll tell you everybody in my session, the camera is compulsory. Okay, Shanika from Pune, your engineer, Hyderabad, high performance coach, Mr. MV. Okay, what about others? And आप सो के अटेंड कर रहे हो शिरीष पाटिल, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? मेरे सेशन अगर आपको अटेंड करना है, अपने बैठने अटेंड करना है, अदरवाइज फिर हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देगा, राइट? मैं थोड़ा टेढ़ा ट्रेनर हूँ, मैं थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता हूँ, राइट? ओके, जय इज फ्रॉम महाराष्ट्र, शिरीष इज फ्रॉम सांगली. आई रिक्वेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट टाइप योर सिटी as well as your profession as well, because I'm going to take 4 bonus session for you people for next 4 Mondays, and about it's all about high ticketing industry. So I need to understand, okay, from which industry you belong, you from which city you belong, because my session gonna be a non-fiction session from Pune, Walking Cryptocurrency Project. Ravindra mate over there. Vibhuti is professional anchor from Ahmedabad. Okay. Taxation and finance, Thane, Mumbai. Okay, I'm basically from Mumbai. Okay, so let's start, everybody. Ladies and gentlemen, put your right hand up. Everybody, put your right hand up. Muh pe smile, muh pe smile. Put your right hand up. Put your left hand up. Okay. Kiss your right cheek. Are kijiye. Kiss your left cheek. Give me a virtual hug. Give me a flying kiss. If you're ready, just type it ready in the chat box. So we're gonna spend next 90 minutes together, और मेरा वीडियो आई गेस धर्म ने इंट्रोडक्शन वीडियो धर्म ने प्ले किया था, but I hope you don't mind if I share about me for next 60 seconds. If you're okay with that, just type it okay. So we need to be at the same page in terms of values, ideology, or exactly what we're gonna understand in that next 4 session. If you're okay with that, just type it okay in the chat box. Okay, fantastic. So if you're meeting me first time, let me tell you, I'm into this industry, almost from last 14 years. Basically, I'm from Mumbai. मैं एक मुंबई कर हूँ, और पिछले काफी सालों से मैं दुबई और अहमदाबाद दोनों जगह पे सेटल हुआ, and I travel the world. So I started my training and coaching industry back in 2007 when I was just 16 or 17 years old. I'm 30 in front of you right now, and basically I belong from a spiritual family. If you heard about Reiki, chakra healing or something, if you heard about this, show me left hand. My mom is a spiritual artist. She's a healer. She's a Reiki trainer. So मैं अपनी मम्मा की कोख से healing, chakra healing, law of attraction सब कुछ सीख के आया हूँ. I pursuing Bhagavad Gita more than 8 times before the age of 16. So I belong from, very spiritual family. If you heard about Brahma Kumaris or ISKCON, my mom associate with Brahma Kumaris, and, ISKCON sort of a spiritual organization almost from last 20 years or 2 decade, you can consider that. और मैं हिंदुस्तान में कोचिंग इंडस्ट्री में तब से हूँ जहाँ पे हिंदुस्तान में लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब भी नहीं पता था. I started my working on stage at age of 16. Right now I'm owning 3 companies जिसका 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है. You are here just because of Guni Guru. I'm the one of the co-founder of Guni Guru as well. And apart from that, how many of you heard about the Tony Robbins? If you heard about Tony Robbins, show me right. If you heard about Tony Robbins, how many of you heard about Grant Cardone? Show me left hand. If you heard about the Grant Cardone, okay. So I'm the platinum member of Tony Robbins almost from last 7 years. So I'm taking one-on-one mentoring from Tony Robbins from last 7 years. And if you heard about Grant Cardone, I'm in the mastermind group of Grant Cardone almost from last 3.5 years. So आज की तारीख में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में from last 7 years
I help entrepreneurs, coaches, business owners, politicians, actor and actresses to build their multi-millionaire holistic life and how they can achieve the financial freedom. And I help business coaches and businessmen and entrepreneurs to take their business from value for money to a high ticketing business. Okay. And पिछले 14 साल में करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर मैं क्रिएट कर चुका हूँ. और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा मैं अपने टेस्टिमोनियल्स और अपने रिजल्ट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. Clear everybody? Clear? Show me right and if you're clear with that. Okay, so before we start, this is the foundation for session of 90 minutes for next 4 Mondays, about high ticketing industry. आप में से कितने लोगों ने, first of all I'll ask, आप कौन सी लैंग्वेज में इजी रहोगे, इंग्लिश, हिंदी और मिक्स? Let me know in the chat box. English, Hindi or both, which language you guys gonna be comfortable? Mix is fine, English is fine. Okay, fantastic. Mix. Okay, and so nobody has a problem with the Hindi. Okay, fantastic. So how many of you heard about high ticketing concept before this session? If you heard about high ticketing concept, just type it HTC in a chat box. If you never heard about HTC concept, just type it no in a chat box. Okay, Sarika heard about that. Arun heard about that. Sahil no. Uday HTC yes. Supriya no. Rakesh no. Okay, fantastic. So take your pen and paper. Everybody, every product or services industry. Let's start this session. Every product or every service industry has 4 different market. Write it down. Any product or any services, has a 4 different markets. Low ticketing. The first market is low ticketing. Second is mid ticketing. Third is high ticketing. And the fourth is platinum ticketing. Now, any product or any services, ठीक है, has a 4 different market. So इससे पहले आपने YSR के वेबिंदर सिंह राठौड़ की सेशन अटेंड किए होंगे और वहां पे YSR ने बताया होगा आपको कि कोई भी इंडस्ट्री में आपको कोई पैसा कब देता है. ठीक है, तो there is an acronym that's called PVR. Write it down. या तो आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो आप किसी की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करोगे फ्रॉम योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, तभी जाके आपको कोई पैसा देगा. Vikas and everybody, right? Show me left hand. Yeah. अब put your right hand up and repeat after me. छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, छोटा पैसा मिलेगा. बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बड़ा पैसा मिलेगा. ठीक है, एक डॉक्टर है कि पेट का दर्द दूर करेगा 500 रुपए, किडनी का दूर करेगा तो 5 लाख रुपए. आपने एक मूवी देखा होगा, एक जॉनी LLP अक्षय कुमार का. बोले आपका फीस कितना है? बोले डिपेंड करता है कि आपको सजा कितनी चाहिए. 2 साल है तो अलग, 10 साल है तो अलग, फांसी है तो अलग उम्र के चाहिए तो अलग, फीस अलग अलग हिसाब से चेंज होता है. राइट? ठीक है. इसी तरीके से आप छोटा वैल्यू क्रिएट करोगे, छोटा पैसा मिलेगा. बड़ा वैल्यू क्रिएट करोगे, बड़ा पैसा मिलेगा. ठीक है, अगर आप एक कॉफी पीने जाते हो रोड पे, ठीक, छोटा वैल्यू क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो कितने रुपए? 20 रुपए. ठीक है, आप उडीपी में जाओगे 40 रुपए का, वहां पे एक पंखा मिलेगा, टेबल मिलेगा और एक ऐसा वेटर मिलेगा जो आपकी कभी नहीं सुनेगा. हेलो. have experienced the UDP coffee? How many of you experienced that? You call the waiter, hey waiter, ए गया. राइट? ठीक है. अच्छा, थोड़ा और सीसीडी में जाओगे, कैफे कॉफी डो में, ठीक है, तो वहां पे अच्छा एसी मिलेगा, अच्छा म्यूजिक मिलेगा, 150 रुपए का कॉफी. ठीक है, अगर आप स्टारबक्स में जाओगे 400 रुपए का कॉफी. ठीक है, एवरी मार्केट, एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्री हैज अ 4 डिफरेंट मार्केट. लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग, हाई टिकटिंग एंड प्लेटिनम टिकटिंग. ठीक है, उसी तरीके से आप एक छोटा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, छोटा पैसा मिलेगा. बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, बड़ा पैसा मिलेगा. क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? ठीक है. अब आप कौन से सेगमेंट में काम करना चाहते हो, लो टिकटिंग या मिड टिकटिंग या हाई टिकटिंग या प्लेटिनम टिकटिंग? आज की तारीख में दुनिया का ऐसा कोई भी सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस मुझे बताओ जो चारों इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है. 20 रुपए का भी लीटर का पानी का बॉटल मिलेगा, 1500 रुपए का भी मिलेगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? शो मी राइट हैंड इफ यू एग्री विद दैट. ठीक है, टेल मी अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, जो हाई टिकटिंग में अवेलेबल नहीं है. पानी पूरी भी हाई टिकटिंग में अवेलेबल है. ग्वालियर में जाओगे 300 रुपए का 6 पानी पूरी मिलेगा. हेलो. How many of you understanding this? ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, कोई कोचीज है, कोई ट्रेनर्स है जो 200 रुपए में भी कोर्स बेच रहा है, कोई 2000 में भी बेच रहा है. ठीक है, कोई 5000 में भी बेच रहा है, कोई 10,000 में भी बेच रहा है. ठीक है, मैं इकलौता पागल हूँ कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से. ठीक है, my basic program starts with a 2,50,000, it ends with 36 lakh rupees. कितने लोग ये स्किल सीखना चाहते हैं? Just type it highly me in a chat box. Right? उदय, कैश फ्लो बाबा कौन है मुझे नहीं पता. ठीक है, नाम तो इंटरेस्टिंग है, कैश फ्लो बाबा. ठीक है, दीपक एंड विजित ओवर देयर. आपका कैमरा कंपलसरी ऑन होना चाहिए मेरे सेशन में. ठीक है, आई होप आपने धर्म ने आपको बताया है.
हाईली हाईली ओके एक्साइटेड, ठीक है। बट ये लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग, हाई टिकटिंग एंड प्लेटिनम टिकटिंग में डिफरेंशिएट कहां पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक दो पैरामीटर आपको यहाँ पे बताऊंगा, लिख लीजिए जरा पे। ये चारों इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिलहाल मैं कोचिंग इंडस्ट्री की फिलहाल बात नहीं करूंगा, तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट के दो पैरामीटर है, राइट इट डाउन। फर्स्ट इज क्वालिटी, द सेकंड इज प्राइस। First is quality and second is price. So let's understand the basic of high ticketing industry, ठीक है। और एक क्वालिटी प्राइस को समझने के लिए यह मैट्रिक्स आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी वर्सेस प्राइस। तो सबसे पहला मार्केट कौन सा है, लो टिकटिंग मार्केट, जिसको चाइनीज गुड मार्केट बोलेंगे, ठीक है। सस्ता बेचो साहिल सबको बेचो, सस्ता बेचो सबको बेचो, ठीक है। क्वालिटी भी लो है और प्राइस भी लो है, राइट, ठीक है। दूसरा मार्केट कौन सा है, वैल्यू फॉर मनी मार्केट, ठीक है। राजेश्वर राव आप फोटो ले रहे हो, डोंट वरी, मैं आपको सेम टू सेम पीपीटी दे दूंगा, क्लियर, ठीक है। सो आई यहाँ पे आप आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चारों के सेशन सीखने के सेशन नहीं है, समझने के सेशन है, क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। दूसरा मार्केट है वैल्यू फॉर मनी मार्केट, उन प्रोडक्ट उन सर्विसेज, वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई कोचिंग प्रोग्राम हो सकता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू चार्ज हाई, वो ज्यादा प्राइस को चार्ज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू फॉर मनी मार्केट, ठीक है। क्वालिटी इज वेरी हाई बट प्राइस इज वेरी लो। तीसरा आएगा, इसमें ढेरों एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, एक पहले फाउंडेशन को समझते हैं। तीसरा मार्केट आता है वैल्यू फॉर मनी मार्केट को क्या बोलेंगे, मिड टिकटिंग मार्केट। तीसरा मार्केट हो गया अपॉर्चुनिटीज मार्केट, या फिर मोनोपोली मार्केट भी बोल सकते हो, ठीक है। क्वालिटी लो है, नो क्वालिटी नहीं है, बट प्राइस बहुत ज्यादा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न, 300 रुपए का टिकट है, 300 रुपए का पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न बहुत अच्छा है, साहिल एंड एवरीबॉडी, राइट, बट 300 रुपए का नहीं है। बट मोनोपोली मार्केट है, पनीर बटर मसाला, लेकिन अगर आपको ताजमहल का व्यू चाहिए या बुर्ज खलीफा का व्यू चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, हेलो। इसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मार्केट या मोनोपोली मार्केट। या आप ऐसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो जो मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, आपके प्राइस उनसे ज्यादा होंगे, हेलो, ठीक है। और चौथा मार्केट आता है हाई टिकटिंग मार्केट, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम मार्केट। क्वालिटी भी हाई है और प्राइस भी हाई है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज विद द प्राइस एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आप चीज देख रहे हो, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी मार्केट और प्रीमियम मार्केट में, ठीक है, कॉमन चीज क्या है, क्वालिटी, हेलो, ठीक है। स्टिल बहुत सारे बिजनेस ओनर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे कोचिस, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट होने के बावजूद, ठीक है, अपनी प्राइस जितना वो डिजर्व करते हैं क्यों चार्ज नहीं कर पाते, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ एग्री विद दैट। पर मैं आपको बताऊं उससे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्यों, अगर एक इंसान के पास, अगर सबसे पहले तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, यू डिजर्व टू चार्ज हाई, एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। You deserve to charge high. Agree, disagree? Highly agree. I like that answer. Right? Agree, agree. Charge high. Absolutely, absolutely. ठीक है. Okay. Still, the people who has a product and good quality product and services, why they are not able to charge high? Can you give me the reason which you have, whichever you know, any 2, 4 reasons or something like that? ठीक है. क्या लगता है आपको क्यों वो चार्ज नहीं कर पाते हैं? क्या reasons हो सकते हैं? Fear. Okay. Fear of what? Can you tell me? धर्म प्लीज, जिसके भी कैमरा ऑन नहीं है काइंडली हेल्प मी, बिकॉज नो कैमरा, नो परमिशन इन द रूम। इज इट रूड और शूड और फेयर इनफ एवरीबॉडी, कैमरा इज कंपलसरी, इज इट रूड और शूड फेयर इनफ, राइट। लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस गेटिंग, ओके, कॉन्फिडेंस की बात है, दे डोंट नो द वर्थ ऑफ देयर ओन, व्हाट दे डिजर्व, ओके। सेल्फ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है, फियर ऑफ वर्थ है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस करने के टाइम पे, ठीक है, प्राइस बढ़ाना नहीं बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस का कमी है या उनके पास सही सिस्टम एंड स्ट्रेटजी का कमी है, कॉन्फिडेंस इसका कोई लेना देना नहीं है, एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन चैट बॉक्स।
और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये रखना है, ठीक है, तो बिजनेस नहीं करने की उम्मीद रखनी चाहिए। एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स। क्योंकि ये फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ प्राइस, ये बिजनेस ओनर या कोच को शोभा नहीं देता। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इफ यू एग्री, गिव मी हाई फाइव. My program's gonna be a little bit different, right? It's gonna be non-fiction. I hope you're okay with that. मैं यहाँ पे कोई mindset की, positive thinking की, या inspiration की, या motivation की बातें नहीं करने वाला हूँ. Agree, everybody? How many of you love to the point intellectual and practical learning? If you love that, show me thumbs up. कभी सचिन तेंदुलकर को या कोई स्किलफुल इंसान को देखा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है क्रिकेट खेलने का? नो, इफ यू हैव द टैलेंट, कॉन्फिडेंस gonna come automatically. Agree or disagree? कभी आपने देखा स्विमिंग स्विमिंग सीखने के बाद आपको ऐसा लगा स्विमिंग तो आ गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है पानी में कूदने का? जिसको आता है ना, उसको डर नहीं लगता पानी में कूदने का। हेलो, नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है। सो आई हेल्प फ्रॉम लास्ट 7 years, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 14 years, but specifically from last 7 years, I help influencers, I help coaches, trainers and mentors, and I help business owners, to take their business, to take their coaching program from value for money market to a premium market. And in last 3.5 years, I have coached more than 650 trainers, coaches, and mentors. और जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में मैं आई कैन बीट माय चेस्ट, मैं अपनी छाती ठोक के बता सकता हूं कि इंडिया में अगर आपको कोई भी हाई टिकटिंग कोच मिले, या एशिया में कोई भी हाई टिकटिंग कोच मिले अगर आपको, ठीक है, 80% दे आर फ्रॉम माय बैच। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको बड़े बड़े नाम पता चलेंगे, अच्छा इनका सेशन मैंने अटेंड किया था, ये इस बैच से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। a politician, a film star, a big brand, जो आप शार्क टैंक में देखते हो, ऐसे ऐसी ब्रांड्स, ठीक है, who pass out from my HTC community, right? But फिलहाल, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी मार्केट एंड प्रीमियम मार्केट, ठीक है, इन चारों पांचों में डिफरेंशिएट कहां पे होता है? तो लिख लीजिए, देयर आर 5 फंडामेंटल डिफरेंशिएट्स। If you have a quality product services, and still if you're working in a value for money market, and if you want to go into high ticketing market, there are 5 basic fundamental differentiate or parameter you can consider. Number 1, product specification. Second, price specification. Third, positioning. Positioning के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो USP and USA. USP and USA, it's an acronym. USP को क्या बोलेंगे? Unique serving positioning in the market. And USA को क्या बोलेंगे? Unique serving authority in the market. उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। यूएसपी एंड यूएसए किसके बेस पे क्रिएट होता है? आपका मार्केटिंग और आपके ब्रांडिंग से। चौथा, आपका बिजनेस मॉडल। कौन से बिजनेस मॉडल से आप मार्केट में एंटर कर रहे हो? आई कम अगेन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, दूसरा प्राइस स्पेसिफिकेशन, थर्ड यूएसपी एंड यूएसए, दैट्स कॉल्ड पोजीशनिंग, फोर्थ आपका बिजनेस मॉडल, एंड द फिफ्थ, that's called your entire process, या फिर आप उसको प्रोस्पेक्ट भी बोल सकते हो कि आप कौन से टारगेट ऑडियंस को हिट करना चाहते हो। A specific process, a specific target audience, राइट? अब मैं आपको अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने, ठीक है, पहले मैं आपसे मिथ्स, आपके कुछ मिथ्स दूर करूंगा। आप में से जितने लोगों ने हाई टिकटिंग के बारे में सुना है, ठीक है, तो ये कुछ मिथ्स होंगे आपके दिमाग में। हाई टिकटिंग इज ऑल अबाउट हाई प्राइजेस। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? अगर इफ यू हैव दिस मिथ, हाई टिकटिंग इज ऑल अबाउट हाई प्राइजेस, हाई टिकटिंग प्रोडक्ट सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं। हेलो, ठीक है, या हाई टिकटिंग प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए या हाई चार्ज करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। हेलो, ये कुछ मिथ्स है आपके दिमाग में, ठीक है, सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूं, हाई टिकटिंग प्राइस या हाई टिकटिंग इज नॉट अबाउट, पुट योर राइट हैंड अप एंड रिपीट आफ्टर मी, ठीक है, हाई टिकटिंग इज नॉट अबाउट हाई प्राइस, इट्स ऑल अबाउट हाई वैल्यू। फॉर हाई टिकटिंग you do not need tens of years of experience, or high ticketing do not buy only the people who are rich.
मैं आपको बताता हूँ इंडिया में आज की तारीख में 73.4% जो लोग आईफोन खरीदते हैं, आईफोन इज अ हाई टिकटिंग फोन, हाई टिकटिंग ब्रांड, 73.4% पीपल बाय द आईफोन ऑन क्रेडिट कार्ड. हेलो, दैट मीन्स जो 20,000 50,000 रुपए लाख रुपए कमा रहा है वो भी लाख रुपए का फोन ले रहा है. हेलो, एग्री डिसएग्री? सो इट्स नॉट अबाउट द रिच पीपल. अच्छा, पहले काम करता हूँ डीएस, मैं ना छोटी प्राइस से शुरू कर देता हूँ, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा ना फिर मैं ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दूंगा. हैव यू हर्ड अबाउट स्टारबक्स और एप्पल? ठीक है, कि मैं पहले 20,000 का फोन बना लेता हूँ, फिर मैं 1 लाख रुपए का बेचूंगा. पहले मैं 50 रुपए में कॉफी बेचता हूँ, फिर मैं 300 रुपए में बेचूंगा. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. नेवर एवर. हेलो. So it's a hardcore system. It's called expertise, right? So I'm gonna give you that expertise of last 7 years, which I helped, more than 2,000 entrepreneurs in my life, because I work in a very niche market. In short, अगर आप एक फैशन डिजाइनर और अगर आप बुटीक चलाते हो, ठीक है, तो आपको एक मनीष मल्होत्रा कैसे बनना है. So there are 5 different shade. अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ. पहले तो ये मिथ्स की बात कर ली हमने, ठीक है. तो हाई टिकटिंग इज नॉट अबाउट हाई प्राइस, इट्स ऑल अबाउट हाई वैल्यू. ठीक है, मान लो किसी के पास 400 बीघा जमीन है, ठीक है, उसके लिए 400 रुपए का स्टारबक्स का कॉफी महंगा है, ठीक है, बट वो अपने बेटे के शादी में गुड़ी पे 2 लाख रुपए उड़ा देगा, वो महंगा नहीं है. पॉसिबल है? हेलो. शायद कोई 20,000 रुपए कमाता है, उसके लिए 300 रुपए की स्टारबक्स महंगी नहीं है. पॉसिबल है? हेलो. सो इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट वैल्यू. And everybody has a different value about different product and services. अब मैं आपको 2 ब्रांड का एग्जांपल बताता हूँ. एक है वैल्यू फॉर मनी मार्केट में, एक है प्रीमियम मार्केट में. ठीक है, एक है 150 रुपए का कॉफी जिसको मैं वैल्यू फॉर मनी मार्केट में काउंट करता हूँ, सीसीडी का कॉफी. एक है 400 रुपए का स्टारबक्स का कॉफी, ठीक है, जो हाई टिकटिंग ब्रांड है. आप में से कितने लोगों ने सीसीडी में भी कॉफी पिया है एंड स्टारबक्स में भी कॉफी पिया है? पुट योर बोथ द हैंड ऑन. ठीक है, अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए, दोनों कॉफी कंज्यूम करते टाइम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या था, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपको क्या लगा? बता सकते हो चैट बॉक्स में कि इसके कॉफी बीन्स अलग थे, उसका कॉफी का टेस्ट अलग था, या कोई मुझे स्पेसिफिक डिफरेंशिएट बता सकते हो? क्या है मुझे बताओ चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ. अगर आपने दोनों में कॉफी पिया है. विकास, साहिल, सुप्रिया, लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स. ठीक है, सेम नहीं नहीं, सेम तो नहीं होता है बट डिफरेंट होता है. बट हाँ, जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है, बट फिर भी एम्बियंस नहीं, एम्बियंस मैं सिर्फ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ उदय. नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो निकिता. ठीक है, मैं तो सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. हेलो. जग का एक्सपीरियंस, स्टारबक्स, सी these are the experience you are talking about. So everybody, ladies and gentlemen over there, put your right hand up and repeat after me. ठीक है, high ticketing is all about, repeat after me, high ticketing is all about people don't buy product. In high ticketing segment, people don't buy product, people buy experience, people buy emotions, and people buy you in coaching industry. People don't buy coffee, people buy Starbucks. People don't watch movie, people watch Salman Khan. People don't watch sometimes IPL, people watch IPL just because of Mahendra Singh Dhoni. People don't buy watch, people buy Rolex. People don't buy lehenga, people buy Manish Malhotra. Agree, disagree? So दोनों में डिफरेंशिएट है. अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बताया, वैल्यू फॉर मनी मार्केट, ठीक है, एंड हाई टिकटिंग मार्केट में 5 डिफरेंशिएट है. शो मी 5, ये समझना जरूरी है आज के सेशन में. सबसे पहला प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है. दूसरा, ठीक है, डिफरेंशिएट इन कस्टमर, ठीक है. तीसरा प्राइसिंग. चौथा पोजिशनिंग, दैट्स कॉल्ड यूएसपी यूएसए. एंड पांचवा बिजनेस मॉडल. अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं स्टारबक्स का सेम मग अगर आपको मैं रोड साइड दूं, सेम कॉफी, सेम मग, और रोड साइड दूं, क्या 400 रुपए का खर्चा करने का मन होगा? यस और नो? लेट मी नो इन चैट बॉक्स. बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. डोंट बी प्रिजनर इन द हाउस. नो, नहीं होगा मन. क्यों? आप तो प्रोडक्ट के लिए पैसा देते हो ना. इट नेवर वर्क्स लाइक दैट. अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ रहना चैट बॉक्स में रेडी. ठीक है,
मैं स्टारबक्स के उसी आउटलेट के अंदर मैं आपको कॉफी देता हूँ, सेम क्वालिटी देता हूँ, वही एम्बियंस देता हूँ मिस्टर राव, ठीक है, बट बोर्ड के ऊपर स्टारबक्स की जगह पे लगा देता हूं मैं रमेश कॉफी सेंटर। बताओ कितने रुपए का कॉफी लग रहा है ये? डोंट माइंड विद द नेम, आई एम जस्ट रैंडमली आई एम टेलिंग यू। बताओ कितने रुपए का कॉफी लग रहा है ये? विकास बताइए। 50 रुपए का। So it's not only one thing that matters. So many things matters together. Hello. It's not about the quality of the product. It's not about only ambience. It's not about only the branding. Hello. कई बार मैं सेशन शुरू करता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है सर आप तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम बोल रहे हो, एप्पल, स्टारबक्स। मैं तो एक नया नया कोच हूँ, मैं तो नया नया एक बिजनेसमैन हूँ, एक तो नया नया एंटरप्रेन्योर हूँ, क्या मैं स्टार्टिंग से ज्यादा प्राइस चार्ज करता हूँ? देखो, हाई टिकटिंग इज नथिंग रिलेटेड टू योर बिकमिंग अ न्यू कमर, ओल्ड कमर, पतला कमर और मोटा कमर। हेलो। स्टारबक्स पहले दिन से हाई टिकटिंग ब्रांड है। हेलो। एप्पल पहले दिन से हाई टिकटिंग ब्रांड है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे, जब आप अहमदाबाद ऑफलाइन में आओगे, आई एम गोना स्पेंड वन डे विथ यू। बहुत ही सस्ते में मिल गया हूं, आप वसूल कर लेना जरा। राइट। तो मैं वहां पे बताऊंगा 90 हाई टिकटिंग ब्रांड्स की केस स्टडी, जिसमें से 87% हाई टिकटिंग ब्रांड्स पहले दिन से हाई टिकटिंग ब्रांड है। So it's nothing related if you're a newcomer, old comer, पतला कमर, मोटा कमर, whatever the comer. आप अगर अपना करियर शुरू भी कर रहे हो, that doesn't matter. It's all about system and strategy. ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा मैं टारगेट ऑडियंस को लेके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो पुट योर राइट हैंड अप, पुट योर लेफ्ट हैंड अप, डिफरेंशिएट बताता हूँ, ठीक है। लो टिकटिंग एंड मिड टिकटिंग इज अबाउट पेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, एंड हाई टिकटिंग इज ऑल अबाउट प्लेजर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कोचिंग के रेफरेंस में अगर बात करूं, सपोज यू आर अ सेल्स कोच, मैं आपको ए बी सी ऑप्शन दूंगा, ठीक है। सपोज यू आर अ सेल्स कोच, ठीक है। आप सेल्स किसको सिखाना चाहते हो? सेकंड फंडामेंटल डिफरेंशिएट, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, ठीक है। आप सेल्स किसको सिखाना चाहते हो? नंबर वन, ए, जिसको सेल्स आती ही नहीं है उसको सिखाना चाहते हो। ऑप्शन बी, जिसको सेल्स आती है बट सेल्स आ ही नहीं रही है और फ्रस्ट्रेटेड है। सेल्स आती है लेकिन सेल्स आ नहीं रही है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, जिसको सेल आती है, जिसकी सेल्स आ भी रही है, 100 सेल्स आ भी रही है, 200 पे पहुंचना है। ऑप्शन सी। विच कस्टमर साउंड्स हाई टिकटिंग कस्टमर? लेट मी नो इन अ चैट बॉक्स। ऑप्शन सी। अब आप तो बन गए कोच। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री इज अ $300 बिलियन इंडस्ट्री। कान इधर लेके आओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, कान इधर लेके आओ। अरे जल्दी लेके आओ इधर, ठीक है। विकास आप थोड़े दूर बैठे हो, आप थोड़ा और नजदीक लेके आओ, कान इधर लेके आओ, फिर ही शुरू करूंगा। देखो, ये $300 बिलियन की हो या $400 बिलियन की हो, आपकी जेब में कितना आता है फर्क वही पड़ता है। एग्री और डिसएग्री? ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ मच यू गोना अर्न फ्रॉम दैट, दैट मैटर्स। और अगर आप बन गए सेल्स कोच, और अगर आपकी कॉपीराइटिंग में लिखा है डू यू हैव द प्रॉब्लम इन सेल्स और डू यू वांट टू लर्न द सेल्स, अब आपके वर्कशॉप में वही लोग आ रहे हैं जिसकी खुद की सेल नहीं निकल रही है, ठीक है, और उसके वजह से आपकी सेल भी नहीं निकलेगी, और वही बोलेगा मेरे को पैसों का दिक्कत है, आपका प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्री और डिसएग्री? आई हैव सीन सो मेनी सेल्स कोच जो बेचारा वेबिनार में 2 घंटा सेल सिखाता है, लैपटॉप बंद करके खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि उसी सेल नहीं आई है। That means you have the right product. Maybe you are positioning in a wrong way. Maybe you are targeting the wrong customer. Hello. ठीक है। Suppose if you are a yoga coach, ठीक है, आप किसको योगा सिखाना चाहते हो? ऑप्शन ए, ठीक है, जिसको योगा आता ही नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन इज अ लो टिकटिंग, द मोर द प्लेजर द मोर द हाई टिकटिंग। वेट लॉस है उसको सिखाना चाहते हो योगा। ऑप्शन सी, जिसको योगा आता है, ठीक है, जो योगा में एनहांस करना चाहता है, ठीक है, जो 10 घंटे के स्केड्यूल में है, और योगा इसलिए सीखना चाहता है क्योंकि वो बाकी के 5 घंटे भी एनर्जी में रह पाए। किस इंसान को योगा सिखाना चाहते हो?
बताइए ABC। मेक सेंस? ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बिजनेस मॉडल का। चलो पांचों का इकट्ठा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 5 मेजर डिफरेंशिएट है बिटवीन वैल्यू फॉर मनी टू हाई टिकटिंग मार्केट। वापस से रिपीट करो, शो मी फॉर एवरीबॉडी। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोस्पेक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, योर पोजिशनिंग, दैट्स कॉल्ड यूएसपी यूएसए। ठीक है, एंड द फिफ्थ इज योर बिजनेस मॉडल। अब पांचों का एक मिक्स एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यू नो समवन इज अ आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर, कंसिडर दैट इंटीरियर डिजाइनर। This interior designer has a working experience of 10 years. ठीक है, अब इस इंसान का फेसबुक एड देखो। ठीक है, हाय आई एम दर्शन सुमा, आई एम इंटीरियर डिजाइनर, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years into this industry. If you want to create a very quality interior in your house, office or factory or farmhouse, we give very good quality services at affordable prices. Contact us below. Show me 5 everybody, again show me 5। देखो, सबसे पहले एक्सपीरियंस अच्छा है, गूगल रिव्यू भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसकी पोजीशनिंग क्या है? एज ए इंटीरियर डिजाइनर। टारगेट कस्टमर कौन है? एनीबॉडी। हेलो, ठीक है। तीसरा, ठीक है, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट कौन है? एनीबॉडी। पोजीशनिंग कौन सा है? अब ई दो की वजह से बाकी 3 इफेक्ट होंगे, कैसे मैं आपको बताता हूं। अब इसकी वजह से क्या होता है पता है? ये लाइन सुनते ही क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। अब जिस इंसान ने 50 60 70 लाख रुपए का घर करके रखा है, ठीक है, वो अपने इंटीरियर में 10 15 लाख रुपए का खर्चा करेगा। हेलो, 10 15 लाख इज अ वेरी लो टिकटिंग इन मिड टिकटिंग। हेलो, हाउ मेनी ऑफ एग्री विद दैट? ठीक है, अब मान लो कि वहां पे, ठीक है, मिस मिस नीपा ओवर दैट, नीपा एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो बहुत टैलेंटेड है, एनआईटी से पास आउट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो क्लाइंट के सामने बैठ के अपनी क्वालिटी टैलेंट को यूज करना चाहते हो और क्लाइंट को बोल रही है ऐसे अपना घर बना सकते हो। अब इसको क्लाइंट कैसे मिल रहा है पता है? नको मैडम नको, वो कलर चलेगा, 4,000 सस्ता करो। आप अपना टैलेंट उसके अंदर ऐड ही नहीं कर पाओगे। एग्री और डिसएग्री? सिर्फ रेट पे बात चल रही है, सिर्फ प्राइस पे बात चल रही है, कोई वहां पे क्वालिटी या स्किल की बात नहीं चल रही है। एग्री डिसएग्री? क्योंकि वो कंज्यूमर ही वैसा है। अब मुझे बताओ विच स्टेटमेंट इज राइट? ऑप्शन ए, आपका नसीब किस्मत खराब है, ठीक है, और मार्केट में जीएसटी की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या मार्केट अप नहीं हुआ है, मार्केट में मंदी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है और कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं है, दुनिया ही खराब है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आपको अपना बिजनेस पोजीशन करना ही नहीं आता है। विच ऑप्शन इज रेलिवेंट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आपको अपनी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, आपको अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, कैसे मार्केट करना है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। How many of you heard about from the people, or might be you have used for yourself? BS, मेरे पास है ना अच्छे कस्टमर आते ही नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आप अच्छे कस्टमर तक, आपका अच्छे कस्टमर आप तक आए, उस लेवल की आप पोजीशनिंग ही क्रिएट नहीं कर रहे हो। विच इज मोर रेलिवेंट, ए और बी? रमेश कॉफी सेंटर सुनते आप जाते हैं वहां पे? I'm not talking about put a right hand up, put a left hand up. We are not talking about fancy marketing. We are talking about effective marketing. Hello. ठीक है, अब मैं इस इंसान का पोजीशन चेंज करता हूं, टैलेंट चेंज नहीं करता। हेलो, ठीक है, अब वही इंसान है, अब वापिस ऐड देखो। हाय आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ओनली। हेलो, पोजीशनिंग कहां से क्या हो गई? रियल इंटीरियर डिजाइनर से इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट। मैं सिर्फ नाम ऐड नहीं कर रहा हूं, पूरा गेम चेंज कर रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट? शो मी लेफ्ट हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और रियल एस्टेट ओनर्स को ही मैं टारगेट ऑडियंस बनाना चाहता हूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को। तो अगर मान लो कि मिस्टर राव अगर 4 करोड़ का फार्म हाउस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आई विल हेल्प यू टू क्रिएट अ सच इंटीरियर इन योर फार्म हाउस सो इट कैन क्रिएट द वैल्यूएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। हेलो, और सारिका, रमेश, पटेल, साहिल, सचदेवा और मिस्टर राव ने अगर एक ही जगह पे
अगर मैंने अपना एक फार्म हाउस अगर खरीद कर रखा है जिसका 10,000 पर स्क्वायर फीट रेट था, और 5 साल के बाद अगर उसका 18,000 स्क्वायर फीट होने वाला है, और अगर मिस्टर राव के घर पे अगर मैंने अच्छा जकूजी, अच्छा स्विमिंग पूल, अच्छा इंटीरियर किया है, तो बाकी 3 से इनको कम से कम 60-70 लाख रुपए ज्यादा मिलेगा। एग्री और डिसएग्री? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। तो क्या इस क्लाइंट के सामने मुझे रेट की बात करनी पड़ेगी? नो। क्या मुझे ज्यादा चार्ज कर सकता हूं? यस। मेरी मेहनत सेम रहेगी? यस। मैं अपने टैलेंट को यूज कर पाऊंगा? यस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ? So if you have a quality product and services, it's not about that. ठीक है? क्या मनीष मल्होत्रा या हाकिम अलीम जैसा कोई लहंगा या कोई बाल नहीं काट सकता इंडिया में? हेलो, इज इट नॉट डुप्लीकेबल? इट्स अ डुप्लीकेबल। हेलो, लुई विटॉन से लेके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके मार्केट में फर्स्ट कॉपी मिल जाता है, रोलेक्स का फर्स्ट कॉपी मिल जाता है। फिर भी ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स कभी बंद नहीं होती और ये हमेशा प्रॉफिटेबल होती है। अब हमेशा याद रखना, ठीक है? पुट योर राइट हैंड अप एंड थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा प्राइवेट बात है, सुनिए जरा। डोमिनोज से अच्छा, डोमिनोज से सस्ता। ठीक है, बोलो मेरे साथ। डोमिनोज से अच्छा, डोमिनोज से सस्ता, डोमिनोज से ज्यादा चीज वाला और ज्यादा टॉपिंग वाला पिज्जा मिल जाएगा, लेकिन वो कभी 3,000 करोड़ साल का नहीं कर पाएगा। एग्री और डिसएग्री? मिल जाएगा ना आपके शहर में, उससे सस्ता, उससे अच्छा, डबल टॉपिंग, डबल चीज। क्या वो अपनी लारी से, अपनी दुकान से कभी बड़ी ब्रांड बना सकता है? नहीं बना पाता ना। कई बार लोग, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस मेरे पास आता है और मुझे बोलते हैं, ठीक है, डीएस पर मैं है ना, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी देना चाहता हूं लोगों को। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, इज वैल्यू फॉर मनी इज इक्वल टू लेस प्राइस? यस। अच्छा, लिखिए लिखिए, जो भी आपका आंसर है लिखिए जरा, मैं थोड़े भ्रम आपके दूर करता हूं आज। Is value for money is equal to a less price? And if your answer is yes, ठीक है, तो क्या एप्पल आईफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है? क्या मर्सिडीज वैल्यू फॉर मनी नहीं है? हेलो, मर्सिडीज वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है? मुझे बताइए जरा। It's a value for money. It's value for money for those people who can afford it, and the people who cannot afford Mercedes, they are not the target customer. काम खत्म। हेलो, ओ डीएस, वो लोग तो है ना सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हैं। अच्छा जी, 50 लाख रुपए खर्चा करने वाला हर इंसान, 10 में से एक शो ऑफ करने वाला होगा, 9 बेवकूफ नहीं होता जो 50 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। एग्री और डिसएग्री? या 500 रुपए की कॉफी पीने वाला, अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो पीता नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। एग्री और डिसएग्री? सो वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट ऑफ लो टिकटिंग वर्सेस हाई टिकटिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नथिंग इज बैड। ठीक है, मैंने कभी यू नो लो टिकटिंग मिड टिकटिंग किया नहीं, ना मुझे आता है, ना मैं कभी सिखाता हूं। क्लियर एवरीबॉडी? It's not about against we are talking. If you're at the same page with me, just type it same page in a chat box. मैं आपको ये भी नहीं बता रहा आपको हाई टिकटिंग भी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी नहीं बता रहा। If you resonate with that, then do it. So value for money is not equal to a less price. ठीक है, और जब हम वैल्यू की बात करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं दो चीज आपको लिखवाना चाहूंगा, तो आपके थोड़े मिथ्स चेंज होंगे इन इंडस्ट्री को लेके, या एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ कोच। तो लिख लीजिए, प्राइस वर्सेस वैल्यू। एब्सोल्युटली मिस्टर राव। Price versus value, write it down. Price versus value, and under the value, write it down, emotional value and value quantification. अब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप तय करते हो, ठीक है, अभी तो बहुत डिटेल में आपको जाना है, लेकिन ये पहला सेशन सिर्फ फाउंडेशन के बारे में है, और बीच में अगर आपने कोई भी सवाल करना है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन पुट योर डिजिटल हैंड ऑन, बिकॉज इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इट्स नॉट अ कंटेंट ओरिएंटेड सेशन, राइट? सो प्राइस वर्सेस वैल्यू, एंड अंडर द वैल्यू, इमोशनल वैल्यू एंड वैल्यू क्वांटिफिकेशन। ये दो वर्ड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है. सो नाउ अब जब वैल्यू, इमोशनल वैल्यू एंड वैल्यू क्वांटिफिकेशन की हमको बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ. आप में से कितने लोगों ने नाइकी एंड एडिडास दोनों के बारे में सुना है? शो मी लेफ्ट हैंड. और आपको दोनों ब्रांड्स के बारे में पता है, तो मैं आपको एक डिफरेंशिएट बता देता हूँ. नाइकी का रेंज शुरू होता है 3,500 से लेके 1 लाख रुपए तक. ठीक है, अगर मैं एवरेज बात करूँ 3,500 से लेके 25,000. और एडिडास का शुरू होता है 1,800 से लेके 7-8 हज़ार तक. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस? ठीक है, तो दोनों के कस्टमर डिफरेंशिएट के बारे में बताता हूँ. दोनों का नीश सेम है. नीश क्या है दोनों का? वो एक जिम वेयर बनाते हैं, एथलीट वेयर बनाते हैं, फॉर मेंस एंड वुमेन्स बोथ. एडिडास उन लोगों के लिए कपड़े बनाता है जो सोचता है मंडे से जिम जाऊंगा. और नाइकी उन लोगों के लिए जिम बनाता है जो हर रोज जिम जाता है. और इसीलिए दोनों के कलेक्शन में भी डिफरेंशिएट है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट? नाइकी के एथलीट वेयर ज्यादा होते हैं और एडिडास के थोड़े लूज फिटिंग ज्यादा होते हैं. कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? शो मी योर राइट हैंड इफ यू ऑब्जर्व दिस. सो हाई टिकटिंग का रेगुलर कस्टमर, प्लेजर ओरिएंटेड, वो कुछ पाना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है. हेलो. अगर आपका कोई कोचिंग प्रोग्राम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों को, ठीक है, उसका टिकटिंग प्राइस हमेशा छोटा रहेगा. और पिछले 2-3 साल में तो खास करके, ठीक है, हाउ मेनी एग्री और डिसएग्री, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री बिकम अ फिश मार्केट, बिकम अ मच्छी मार्केट. Anybody comes and proclaim themselves as a trainer, coach and mentor. Agree or disagree? Let me know in the chat box. इसको मैं मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ पता है? ट्रेडर्स ऑफ नॉलेज. ट्रेडर्स ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट पता है आपको? 10-15 लोगों के वेबिनार अटेंड किया, सबका माल उठाया, अपने पीपीटी पे डाला और चेपना शुरू कर दिया. हेलो. डज इट साउंड रूड और शूड और फेयर इनफ? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कंटेंट इज नॉट द किंग, कॉन्टेक्स्ट इज द किंग. अगर आप गूगल पे जाओगे ना, जो टोनी रॉबिन्स डेट विद डेस्टिनी 7 लाख रुपए प्रोग्राम बेच रहा है, उसका वर्कशॉप के अंदर जो पीडीएफ जो सिखाता है ना, वो गूगल पे मिल जाएगा. नहीं मिले, मैं पब्लिक फोरम पे आपको बताता हूँ, मेरी टीम से ले लेना. कंटेंट से कुछ नहीं होता है. हेलो. एग्री और डिसएग्री? सो जैसे मैंने बताया पिछले 2-3 साल में, ठीक है, हमको लगता है बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, सभी लोग दुख में भी है. हाउ मेनी एग्री? बहुत सारे लोग खुश भी है और बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं. एग्री डिसएग्री? बहुत सारे लोगों की सेल्स आ रही है, बहुत लोगों के बिजनेस चल रहे, वो आगे के लिए हेल्प चाहते हैं कोचेस, ट्रेनर्स एंड मेंटोर्स के लिए. हेलो. सो हाई टिकटिंग इज ऑल अबाउट प्लेजर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. आई एम अ मनी मैनेजमेंट कोच. ठीक है, मैं उन लोगों को मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहता हूं, ठीक है, जिनको पैसे की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पैसे ज्यादा की वजह से प्रॉब्लम है. दोनों में डिफरेंशिएट है. नाइकी, एडिडास, दोनों का कंज्यूमर अलग है. हेलो. डिप्रेशन में करण जौहर भी जाता है, डिप्रेशन में आम इंसान भी जाता है. मैं ये नहीं बता रहा हूं आप करण जौहर को डिप्रेशन से बाहर निकालो, बट दोनों का डिप्रेशन के लेवल अलग अलग है. हेलो. मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक रिलेशनशिप में, मैं अलग अलग नीच के बारे में बात करूंगा, अगर आप एक रिलेशनशिप नीच में जाना चाहते हो, ठीक है, एक इंसान अपनी हाउ मेनी एग्री विद दिस प्रैक्टिकल फैक्ट, एक इंसान फाइनेंशियल लाइफ में जब स्टेबल नहीं होता है ना, उसको रिलेशनशिप के प्रॉब्लम ज्यादा बड़े नहीं लगते. बट इंसान जब 3 लाख रुपए कमा रहा है और फिर भी रिलेशनशिप खराब होता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है. एग्री डिसएग्री? एक 10,000 रुपए कमाने वाला इंसान डिप्रेशन में कभी नहीं जाता. वो तो सोच के बैठा है मेरा तो बनता है बॉस. जब इंसान 10 लाख रुपए कमाता है फिर डिप्रेशन में जाता है ना, साला उसको लगता है साला फिर भी मैं डिप्रेशन में हूँ. एग्री और डिसएग्री? बाबा रामदेव भी योगा सिखाते हैं, सदगुरु अपने इनर इंजीनियरिंग में भी योगा ही सिखाते हैं. आप दुनिया की माइंडसेट के या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप किताबें पढ़ लो, आप में से कितने लोग किताबें पढ़ने के शौकीन है? शो मी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. हाउ मेनी एग्री और डिसएग्री? आप कोई भी एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 से 15 किताबें पढ़ लो, घूम फिरा के बातें वही जा रही है. एग्री और डिसएग्री?
घूम फिरा के बातें वही 4-5 ही है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया हुआ है. कंटेंट इज नॉट द किंग. मेजर डिफरेंशिएट कहां पे आ जाता है? ठीक है, किसी ने कॉफी 20 रुपए में बेची, किसी ने 500 रुपए बेची. देयर इज नो वॉर ऑफ वैल्यू फॉर मनी. जो स्टारबक्स का कस्टमर है उसके लिए 400 रुपए का वैल्यू फॉर मनी ही है. तभी जाके वो पी रहा है, तभी जाके ये ब्रांड्स ग्रो कर रही है, तभी जाके ये ब्रांड्स वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रही है. कौन से स्टोर के पास भीड़ लगती है? एप्पल लॉन्च होता है तब, या 10,000 वाला फोन लॉन्च होता है तब? कौन से स्टोर के बाद प्री बुकिंग एडवांस में भीड़ होती है? मुझे बताइए जरा. एप्पल के. Again, I'm telling you, we are not talking about against of low tech. We are not talking about the concept of low ticketing versus high ticketing. Agree? Show me thumbs up. So the price segment हो गया, the business model segment हो गया, कौन से टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहते हो, राइट? ये पांचों डिफरेंशिएट हो गए फ्रॉम वैल्यू फॉर मनी मार्केट टू अ प्रीमियम मार्केट, अ सेगमेंट यू कैन कंसीडर दैट. Clear everybody? If you're at the same page as of now, show me about the hand. Okay. Now the third thing we need to understand that. ठीक है. But before मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन है? बिकॉज आप में से कुछ लोगों को हाई टिकटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी नहीं था कि चारों अलग अलग मार्केट होता है. ठीक है, प्राइसिंग में डिफरेंशिएट होता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं कोचिंग प्रोग्राम की, बिफोर 7 years बैक आई स्टार्टेड चार्जिंग 2 लाख रुपीज ऑफ प्रोग्राम. लोगों को बड़ा अमाउंट लगता है 2 लाख रुपए. ठीक है, आज I own HTC community, which is start with a 2,50,000 rupees. Then I own a platinum community. A person wants to come in that mentorship program, I charge 18 lakh rupees. I own one person club community where I charge 36 lakh rupees plus the equity as well. I'm running this three of the companies. I'm mentoring Karnataka Women Achievers Award, Indian Women Achievers Award of more than 32 brands, India, out of India. Right now, you name the, international trainer on Google, a Peng Joon or Russell Benson or Brian Carden or, Tony Robbins or Alina Carden. You go on my Instagram, you check my interviews, lunch and dinners with those guys. और अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, ठीक है, मेरी आवाज भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा. दैट मींस आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माय टाइम्स इन 7 टिप्स, 6 टिप्स, 5 टिप्स, 3 टिप्स, फलाना टिप्स, ढिकना टिप्स. हेलो, सो कॉल इन कंटेंट मार्केटिंग गेम, because the entire segment is different. And when it comes to your coaching program, when it's come to quality, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा क्वालिटी है, कौन सा सर्विस, कौन से सर्विस से ज्यादा क्वालिटी है, या आपका कोचिंग प्रोग्राम उस कोचिंग प्रोग्राम से ज्यादा इफेक्टिव है. ये कुछ क्वालिटी जो वर्ड है उसकी परिभाषा या पैरामीटर्स होना जरूरी है. हेलो. तो हम इसको 3 सेगमेंट में समझते हैं. ठीक है, राइट इट डाउन. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट इंडस्ट्री, यानी फिजिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, एनी फिजिकल, एनी टचेबल. सेकंड, एनी काइंड ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री, makeup artists, event managers, anchors, influencers, coaches. These people are coming, service industry, advocates, CA, end of the day वो सर्विस बेच रहे अपनी. बट हम कोचिंग इंडस्ट्री को उसको साइड में कर लेते हैं. हम यहाँ पे तीसरा कैटेगरी लेते हैं, कोचिंग ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री. तो लिख सकते हो CTM. That's an acronym. CTM is an acronym. Coaching, training and mentoring industry. तो अब तीनों ऐसे डिवीजन कर सकते हो जहां पे भी आप लिख रहे हो. How you can define the quality? That should be the parameter for that, right? तो सबसे पहले, ठीक है, मैं आपको कोचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री के डिफरेंशिएट आपको बता देता हूँ. ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री इज डिफरेंट, ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज डिफरेंट एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री इज डिफरेंट. ठीक है, राइट इट डाउन. कोचिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट नॉलेज गिविंग इंडस्ट्री. Training industry is all about knowledge plus expertise, knowledge giving industry. Knowledge plus expertise. आपको नॉलेज भी उस चीज का और उस नॉलेज के ऊपर आपका एक्सपर्टाइज भी है. I'll give the example, don't worry. And mentoring industry is all about knowledge plus expertise plus experience giving industry. यानी अगर
मिस्टर राव, अगर आपको सेल्स आती है बट सिर्फ आपको आती है, चैप्टर आता है, दैट मीन्स देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन टीचर, प्रोफेसर एंड कोच. हेलो, they know the HR, they know how to teach HR, they know how to teach marketing, but they never had the field experience. हेलो, और ऐसे जितने भी कोचेस है मार्केट में, उनको बोलता हूँ ट्रेडर्स ऑफ नॉलेज. 10 जगह पे मार्केटिंग का कोर्स किया, उनके पास कंटेंट, पीपीटी, पीडीएफ आ गया, एंड दे प्रोक्लेम देमसेल्फ एज अ मार्केटिंग कोच, which is not hygienic. Agree or disagree? Let me know in a chat box. Because this industry is all about responsible industry. This is not only knowledge giving industry. यानी कोच आचरेकर थे, सचिन को उन्होंने क्रिकेट सिखाया. ये स्क्वायर कट है, ठीक है, ये स्ट्रेट ड्राइव है, ये पुल है. सचिन को क्रिकेट का स्किल आ गया. हेलो, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में 7 टीम खेल रही है, वहां पे 12 खिलाड़ी, 50, 70, 80 खिलाड़ी खेल रहे हैं. उस 80 खिलाड़ी में से, ठीक है, उसको इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है. वहां पे सिर्फ नॉलेज या स्किल से काम नहीं चलेगा, वहां पे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी चाहिए. हेलो, एफिशिएंसी बोले तो स्पीड, इफेक्टिविटी मींस क्वालिटी. वहां पे सभी अच्छा खेलते हैं, वहां पे 70, 80, 100 रन मारने से नहीं होगा. वहां पे रेगुलरली 100 सेंचुरी, रेगुलरली 100 रन मारने पड़ेंगे, 7-8 सेंचुरी बैक टू बैक मारनी पड़ेगी. हेलो, वहां पे आता है काम ट्रेनर का, जहां पे उसकी स्क्वायर कट में या पुल में जो माइक्रो माइंडिंग होता है वो ट्रेनर करता है. अब सचिन इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया, 50, 60, 70, 80 मैच भी खेल लिया. दुनिया को लगा ये कौन सा प्लेयर आ गया. स्टार्टिंग में तो खेल लिया. अब सारी टीम ने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलने से पहले सचिन के रिकॉर्डिंग वीडियोस देख के बैक टू बैक पता कर लिया कि 4 शॉट उसके वीक पॉइंट है, और अपने बॉलर्स को नेट पे लगा दिया 300 बॉल डालने पे. अब सचिन तो 0 पे आउट हो रहा है. अब यहाँ पे बताओ, अगर आप सचिन होते और आपको कोई आके सिखाता ऐसे खेलना आपको है, स्क्वायर कट ऐसे खेलना है, गुस्सा आएगा नहीं आएगा बताओ. वहां पे अब किसकी जरूरत है? मेंटोर की जरूरत है, जो उसको इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग करे, ना सिर्फ टेक्निकली. एग्री और डिसएग्री? वो होता है मेंटोरिंग इंडस्ट्री. एंड फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years आई एम नॉट अ कोच मोर, आई एम नॉट अ ट्रेनर मोर. सो देयर इज अ डिफरेंशिएट. सो अगर आप में से फॉर एग्जांपल, कई बार होता है ना, जब आप में से कितने लोग हैं, वैसे मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो अभी किसी इंडस्ट्री में आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या किसी किसी प्रोफेशनल काम के साथ जुड़े हुए हो, और आप अपनी प्रोफेशनल काम को या प्रोफेशनल एंटिटी को या लॉबी को चेंज करके कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? जस्ट टाइप इन मी इन अ चैट बॉक्स. और किसी एक इंसान का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है, सरिका है, जितेंद्र है, अरुण है, निकिता है, विजित है. तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री का आप एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस अगर कोचिंग के थ्रू लोगों को देना चाहते हो, तो शुड आई कॉल यू अ न्यू कमर कोच? ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, नो, आई शुड conclude you as an experienced person before you were doing for somebody. Now you are just changing the form in terms of coaching and mentoring. Option B, which is more relevant? The B is more relevant. Hello. No, I have created more than 650 holistic and high ticketing coach. मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है. As we are meeting first time, so I will make it very low key for the first session. So one of my student, Stephen from Bangalore, he shifted to Dubai. He's a real estate expert. That means अगर आसान भाषा में बोलूं, हिंदुस्तानी भाषा में, वो एक ब्रोकर था बैंगलोर में. हेलो. ठीक है, और ब्रोकर का इनकम सोर्स, कैश फ्लो सोर्स क्या होता है? ठीक है, रेंट के मकान पे 2%, 4%, और अगर बाय वाला बेचा, ठीक है, बाय एंड सेल किया तो 2%. हेलो. अब now he has experience in Dubai market from last 7 to 8 years. Now he knows in and out about property builders, about the which area is good return, or if you are buying the property in Dubai, you should go for the Airbnb or you should go for the rent income. He know in and out. Hello. About real estate, having the experience of real estate of 7 years.
He came in my HTC boot camp. He created a workshop of 25,000 rupees only for 2 days. You know, so if you are now the target audience, I'm telling you in a very layman language, Mr. Rao and anybody, if you're gonna invest 3 to 4 crore rupees in real estate market in Dubai, Stephen has a 2 days of workshop, in 25,000 to understand Dubai market. It's a coaching level. Level one is a coaching level. Now the person who gonna invest 3 to 4 CR for them to get into the market to understand that market, 25,000 rupees is nothing for 2 days. How many of you agree or disagree? Now, if I'm Stephen, I'm gonna tell you, you know, that do's and don'ts and pros and cons and in and out about real estate segment in 2 days. Now you have the confidence on me. Okay, this is the right person. And now Mr. Rao gonna come to me and tell me, okay, you only invest. No, you can be my agent over there now. Now the rest of the agents are charging 2%. If I'm gonna charge 4%, even Mr. Rao gonna give it happily because the expertise I have shown them in 2 days. Hello. There will be no bargaining. This is called a business model, example of price segment, example of prospect, example of turning any skill into a coaching industry. Simita from Jammu Kashmir, Priyanka from Chennai, Shalini from Bangalore. These are my HR coach in high ticketing segment, a part of my HTC community. Let me give the example of Shalini from Bangalore. She's working in HR from last 14 years. Now, guys, in business and HR is all about how to hire, how to fire, and people management and everything. Now, after having an experience of 14 years in HR, she knows in and out about building a strong people management and team in a corporate house. Now, I don't need to change, I don't need to change her expertise. I'm going to utilize the same expertise. Now she become an HR coach for startup owners. The person who has an employee size between 3 to 7 employee size means they are paying at least 2 to 3 lakh rupees of salary. That means they are making 10 to 15 lakh rupees of business. Now they do not know how to reach to 50 employees. Employee छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है. So level 1, she prepared a 25,000 over 2 days of workshop. I do not want, as a HR coach, I do not want to teach you HR. Hello. As a business owner, you should not learn HR. Hello. When I say that you should not learn HR, put your right hand up, put your left hand up. Okay. There is one is functional knowledge and the second is objective knowledge. Functional knowledge means process oriented. Objective means strategy oriented. आपको क्या सोशल मीडिया पूरा सीखना चाहिए या उसकी सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए? बताइए चैट बॉक्स में. सोशल मीडिया सीखने चाहोगे, लैंडिंग पेज कैसे बनता है, टारगेट ऑडियंस कैसी है, फेसबुक मार्केटिंग कैसे होती है, जिंदगी निकल जाएगी. तो अगेन क्वालिटी के ऊपर थे. ठीक है. सो कोचिंग ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट नॉलेज गिविंग इंडस्ट्री. आप में से कितने लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री का 7-8 साल का आपको अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टाइज है? जस्ट टाइप इट मी इन अ चैट बॉक्स. जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आई विल मेक यू कैपेबल टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट, how to convert your expertise or experience into a coaching training and mentoring industry in very high industry. अब आप में से कुछ लोग हुए जिनको शायद लाइफ का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, मे बी कोई स्टूडेंट होगा, उनका क्या करने का, उनके बारे में भी थोड़ी देर में हम जैसे जैसे सेशंस आगे पढ़ेंगे हम जानेंगे how you can establish yourself as a high ticketing coach. Make sense? Now suppose for an example, let me take Vibhuti over there, or maybe Sarika over there, maybe Nipa over there. ये तीनों है ना एक इंडिपेंडेंट वुमेन है. ठीक है. अब तीनों इंडिपेंडेंट वुमेन है एंड वो एक अपनी इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल लाइफ में एनहांस होना चाहती है. ठीक है. ठीक है. और आप एक मान लो फॉर एग्जांपल सुप्रिया ओवर देयर, निकिता ओवर देयर, आप दोनों एक एनएलपी कोच हो. ठीक है. और आपकी दोनों की टारगेट ऑडियंस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट वुमेन्स है. आप भी एक एनएलपी कोच हो सुप्रिया, निकिता आप भी एक एनएलपी कोच हो, सारिका नीपा एंड विभूति आपके टारगेट ऑडियंस है और इंडिपेंडेंट वुमेन है.
आप एनएलपी को टूल को लगा के आप उनको इमोशनल स्पिरिचुअल एंड मेंटल लाइफ में एनहांस करके एनएलपी टूल सिखा के उनकी लाइफ बेहतर कर सकते हो। और जब आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, अब आपको मैंने क्या बोला, लो टिकटिंग, मिड टिकटिंग, पेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हाई टिकटिंग, प्लेजर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। मान लो कि अगर सुप्रिया को 10 साल से अनुभव है एनएलपी कोच का, ठीक है, और निकिता जस्ट एनएलपी नई नई कोच बनी हुई है, ठीक है। अब सुप्रिया का एक कंटेंट नथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग पर्सनली, बट जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सो आई होप यू गाइस डोंट माइंड, यू नो। तो सुप्रिया की कंटेंट राइटिंग में पेन ओरिएंटेड है, और आप मुझे तीनों जवाब देना, नीपा, सारिका और विभूति, अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन हो, ठीक है, और पेन ओरिएंटेड है, अगर आप किसी डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है, ये पेन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। निकिता एक प्लेजर ओरिएंटेड यूज करती है कि इफ यू वांट टू grow in your personal and professional line, if you want to grow for holistic life, how many of you agree or disagree there is a differentiate of choice when it comes to pain and the pleasure? Agree or disagree? Remember that real estate example. Anybody cannot be your customer, anybody should not be your customer as well. आप किसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, किसको अपना कोचिंग प्रोग्राम बेचना चाहते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप किसी को सेल सिखाना चाहते हो 100 से 200 तक पहुंचाने के लिए, या जो -100 में है उसको 100 पहुंचाने के लिए लाना चाहते हो, देयर इज अ बिग डिफरेंशिएट। आप पेरेंटिंग कोच बनना चाहते हो, आप किसको पेरेंटिंग सिखाना चाहते हो, बोले दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को। विच इज मोर, नीश ओरिएंटेड, अ वुमेन? हाउ मेनी एग्री? ठीक है, पेरेंटिंग कोच फॉर पेरेंट्स, नंबर ए। बी, पेरेंटिंग कोच फॉर वुमेन, ऑप्शन बी। यू नो ऑप्शन सी, पेरेंटिंग कोच ओनली फॉर इंडिपेंडेंट वुमेन। विच साउंड्स मोर रेलिवेंट? जो इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं है, जो हाउसवाइफ है ना, उसको एज सच कोई पेरेंटिंग वर्कशॉप की जरूरत नहीं, उसका ननंद, उसका भाभी, सब पेरेंटिंग हो जाता है उसका वहीं पे। आई डोंट नो हाउ मेनी एग्री विद दैट। सास ससुर ननंद भाभी सब उस वही पेरेंटिंग कोच है उसके। हेलो। बट द वुमेन हु इज अर्बन, द वुमेन हु इज मेट्रोपॉलिटन, द वुमेन हु इज वर्किंग, the women who is independently living with her husband in a metropolitan city, the both husband and wife are independent, those people gonna buy the parenting books or the workshop or the mentoring. Agree or disagree? The more sellable, what I mean by that, in terms of speed, in terms of price as well, उनको ज्यादा क्वांटिफिकेशन है उस चीज की। रिलेशनशिप कोच फॉर यंगस्टर्स, रिलेशनशिप कोच, देखो आप रिलेशनशिप कोच बनना चाहते हो, एबीसी किसको एड्रेस करना चाहते हो, देखो ऑप्शन ए, ठीक है। मैं जस्ट फॉर दैट थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक अच्छा एक बुरा। बुरे में बुरा क्या है, ठीक है, जिसमें गाली गलौज हो चुकी है, अब्यूज हो चुका है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा है अच्छा, अच्छा रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप। आई एम टेलिंग यू इन अ लेमन लैंग्वेज, गुड रिलेशनशिप, देयर आर टू काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप। एक, ठीक है, जिसमें सब कुछ अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है, हार्मनी भी है, पैशन भी है, रोमांस भी है, ट्रस्ट भी है, सब कुछ है, ठीक है। ऑप्शन बी, रिलेशनशिप अच्छा है, बट देयर इज मिसिंग ऑफ सम केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग और एवोल्यूशन, because both husband wife are independent, there is no any disrespect, but there is no any extreme harmony as well, and these people need a real relationship coach. How many of you agree with this? जिनके रिलेशनशिप में अब्यूज हो चुका है ना, मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में। जहां पे बात अब्यूज पे आ चुकी है ना, वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। How many of you agree with that? Show me right in. I'm telling you on a very practical ground base. Repairable, non-repairable. Okay, let's not get into a debate, but yeah, that's a personal thing, right? अच्छा, किसको रिलेशनशिप की ज्यादा एक्चुअली नीड है, जो अच्छे में थोड़ा बहुत वो वाला रिलेशनशिप बताया मैंने, ठीक है, एबीसी, या जिसका बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका, उनको उनको एक, देखो देखो, दैट इंडस्ट्री इज डिफरेंट। या द बी ऑप्शन इज मोर सेंसिबल। Might be if you become a relationship coach, or one person is in front of you and the second is not, क्या होगा?
हर इंसान अपनी कहानी बताता है. एग्री और डिसएग्री? Everybody tell their own truth or own version of truth. Clear? क्लियर? तो ये तो हो गई कोचिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, मेंटोरिंग एंड डिफरेंशिएट. छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, छोटा पैसा मिलेगा. बड़ा प्रॉब्लम, तो ये थोड़े बहुत हमने डिफरेंशिएट बताए. अब मैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री. ठीक है, तो वहां पे लिखो. ठीक है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे क्वालिटी को हम पैरामीटर्स देंगे. तो लिखो, लो टिकटिंग इंडस्ट्री, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री. दैट मीन्स नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. मुझे पानी का बोतल पीना है, पानी का बोतल चाहिए, नीड ओरिएंटेड फिजिकल प्रोडक्ट. काम क्या है? सिर्फ नीड है. अच्छा है बुरा है क्या है, उसमें पानी डालो और पिया, इतना ही नीड है. 50 रुपए का. लो टिकटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. याद है ना, पीवीआर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री. इन फिजिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री इट्स अ नीड ओरिएंटेड प्रोडक्ट. मिड टिकटिंग इज अ वैल्यू क्रिएशन प्रोडक्ट. दैट मीन्स आप बॉटल मुझे सिर्फ नहीं चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा चाहिए और क्वालिटी भी अच्छा चाहिए. मिड टिकटिंग प्रोडक्ट. That means quality plus X factor. Sorry, need plus quality. Write it down. Need plus quality and result producing is a high ticketing industry. That means need plus utility plus X factor. अब ये बॉटल के ऊपर सीईओ लिखा है. क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. अब मिस्टर राव ऑफिस में बैठेंगे, जब वो टेबल पे सीईओ वाला बॉटल होता है, एक अलग एटमोस्फेयर, एक अलग फीलिंग. हेलो. People don't buy product, people buy experience, people buy emotions. People don't buy that. Quality is by default over there. Hello. Make sense? तो क्या पहली वाली जो बॉटल थी और जो लास्ट वाली बॉटल थी, क्या उसके प्रोडक्शन में जमीन आसमान का प्राइस का डिफरेंशिएट होगा? आंसर इज नो. बट एमआरपी में जमीन आसमान का फर्क होगा? आंसर इज यस. यानी कई बार मुझे लोग क्या बोलते हैं पता है? डेस मुझे 100 रुपए में पड़ रहा है, आप मुझे बोल रहे हो कि 1000 रुपए में बेचूं, यानी 900 रुपए का फायदा घर पे लेके जाओ. दैट मीन्स आप मुझे बता रहे हो कस्टमर को लूटू. सुन लीजिए अगर ये ख्याल दिमाग में आता है तो. ठीक है, और थोड़ा कान नजदीक आइए और मैं बता देता हूँ एक फैक्ट. इधर लेके आए कान, इधर ले, अरे जल्दी लेके आए कान, इधर लेके आए. ठीक है, लेट मी टेल यू, योर कस्टमर डोंट केयर अबाउट योर प्रॉफिट मार्जिन. डू यू नो द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एप्पल? डू यू नो द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस 1 lakh rupees वाला प्रोडक्ट? डू यू नो दैट? और यू जस्ट केयर अबाउट द रिजल्ट. हेलो. मेक सेंस? यस, एब्सोल्युटली. समझ में आया? प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, ठीक है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो क्वालिटी को. आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी है. नहीं, क्वालिटी के परिभाषा है, क्वालिटी के पैरामीटर्स है. क्वालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी. That comes Starbucks as well, that comes the tissue paper of Starbucks as well, that comes the person who serves you coffee as well, that serves so many other things as well. अब जैसे ये तीनों मार्केट है ना, मैं आपको बताता हूँ. मुझे नहीं पता आने वाली 2 मिनट कितने लोगों को समझ में आएगी, बट मुझे बताना अगर समझ में आए तो. ठीक है. ऐसे कंज्यूमर के भी टाइप होते हैं. देयर आर लो टिकटिंग कस्टमर, मिड टिकटिंग कस्टमर एंड हाई टिकटिंग कस्टमर एज. जानना है सभी को? सो मैं लेफ्ट हैंड. लो टिकटिंग कस्टमर आस्क डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. How many people, if as a business owner, as an entrepreneur, you hate those kind of consumer, okay, who always ask the discount? If you are like me, just type it DS or not DS in a chat box. या फिर आपका ऐसा बताना है कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है डिस्काउंट मांगना. और in a different way, ठीक है, I ask you, being as a business owner or entrepreneur, as a coach, you should have some positive obsession about your product. And somebody asks the discount about your product, it is insult to your product. Agree or disagree, दोनों में से कोई एक आंसर लिखिए.
There's somebody don't dare to ask a discount in high ticketing brands. कई बार कोचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, कोचेस अच्छे कोच तो बन जाते हैं बट उनको एक एंटरप्रेन्योर भी बनना जरूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? शो मी लेफ्ट हैंड. वैल्यू फॉर मनी कंज्यूमर, आस्क वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. या तो आप लो टिकटिंग में अपना मार्केट बनाइए या तो हाई टिकटिंग में बनाइए. मिड टिकटिंग इज अ पॉइजन एज अ बिजनेस. आपने क्वालिटी भी देना है, प्राइस भी लो करना है. हेलो, मैं आपको बताता हूँ अभी वो स्टेटमेंट जो आपको शायद दुनिया में जो आप सीखे होंगे उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. ठीक है, ज्यादातर आप एग्री करोगे डिसएग्री करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ. ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ एंड इट्स अ पॉइजन. इट्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला स्टेटमेंट. किंगफिशर से लेके बड़ी सी बड़ी ब्रांड जो इस सेगमेंट को लेके आई, दे ऑलवेज बिकम बैंकरप्ट. I know that it is very difficult to accept that. Quality product at a affordable price. पहली तो बात तो quality is a subjective and affordable price is subjective. Agree or disagree? Might be some product is affordable for you, for the same product somebody, for someone is not affordable, for somebody is it's a very expensive, for somebody it's very cheap. एक डेमो देखना चाहोगे? शो मी लेफ्ट हैंड. ठीक है, चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ. ठीक है, अगर मान लो मैं आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बताऊं, ठीक है, सभी लोग एक साथ आंसर लिखोगे. ठीक है, मान लो एक ऐसा कोई प्रोग्राम, इमोशनल क्वांटिफिकेशन का एक एग्जांपल बताता हूं. एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे, ठीक है, अब आप कोचिंग ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग का तीनों का डिफरेंशिएट समझ चुके हो. ठीक है, हाउ टू जनरेट 1 मिलियन पर मंथ, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको माइंडसेट सिखाया जाएगा. यानी ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, यानी माइंडसेट सिखाया जाएगा. ठीक है, ऐसे प्रोग्राम का क्या वैल्यू हो सकता है या क्या प्राइस आप देने के लिए तैयार होंगे? सभी लोग अपनी अपनी प्राइस लिखिए. सिर्फ माइंडसेट सिखाया जाएगा. लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. कोई भी रैंडम प्राइस आप लिख सकते हो. माइंडसेट सिखाया जाएगा, ईक्यू सिखाया जाएगा. एक प्राइस लिखना, एक प्राइस लिखना है. But Sarika, as of now, take simple question in a simple way. Like the answer, simple. You need